हेलो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم استقار، تمہارے گھر کے اندر تمہاری بہن کچھ اور کہہ رہی ہے، تمہارا بھائی کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہاری ماں کچھ اور کہہ رہی ہے اور تمہارا الفاظ کچھ اور ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ تمہارا کہنے کا جو مطلب ہے آؤ تو آ جاؤ، تو یہ کیا مطلب ہے تمہارے بولنے کا کہ آؤ تو آ جاؤ؟ 4 سال کی پریشانیوں میں آتے ہوئے یہ الفاظ تمہارے منہ سے نکل رہے ہیں، آتے ہو تو آ جاؤ، یعنی کہ آتے ہو تو آؤ، نہ تو کوئی بات ہی نہیں، یعنی کہ سرسری بھی تمہاری، سسری بھی تمہاری، موسر ہمارے باپ کا ہے نا، کہ نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم، یہی الفاظ ہے نا۔ اور دوسرا الفاظ یہ ہے تمہارا کہ میری بہن کو بھی کوئی مل جائے گا، تمہیں بھی کوئی مل جائے گا۔ تو استقار میاں، بال بچے والے، بیوی بچے والے ہو، یہ باتیں تمہارے پر شوبھا نہیں دیتی ہیں۔ اور رہی بات ہماری ملنے والی، تو ہماری پرواہ تو چھوڑ دو کہ ہمیں ملے یا نہ ملے، ہماری پرواہ کیوں کر رہے ہو تم؟ رہی بات تمہاری بہن کی کہ جب تم نے اتنا بڑا فیصلہ اپنے دماغ میں اور دل میں بٹھا لیا ہے کہ اس کو بھی کوئی مل جائے گا، سب سے بڑی غلطی تمہاری یہ ہے کہ تم نے یہ الفاظ بولا کیوں؟ تم چاہتے ہو اس کو چھڑوانا، دوسری جگہ ڈلوانا؟ ہاں، تمہارا خیال انداز کیا بن رہا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو تم لوگ؟ یہ شطرنج کی چال جو تم چل رہے ہو نا، یہ شطرنج کی چال میں کھیلتا نہیں ہوں، میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہوں لیکن کھیلتا نہیں ہوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے فالتو گیری میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ٹائم پاس والی باتیں تم ہی کرتے رہو، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اس باتوں میں۔ اور بچوں کے واسطے میں جو تم بلیک میل کر رہے ہو نا، اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اور جب تک میں زندہ ہوں نا، جب تک میں زندہ ہوں، اگر تم زیادہ ہی بڑا، اگر 30 مار خاں بن رہے ہو، زیادہ دولت والے ہو، پیسے والے ہو، پٹیل ہو، بدماش ہو تم، تو کر لو میرے زندہ رہنے پہ، تم شادی کر کے دکھاؤ، کرو شادی، میرے مرنے کے بعد تم کر سکتے ہو بیٹا، میرے مرنے کے بعد کر سکتے ہو، میرے زندہ رہنے پہ نہیں کر پاؤ گے تم۔ یہ تمہاری غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے تمہارے کہ آتے ہو تو آ جاؤ، اس کو مل جائے گا، تمہیں مل جائے گی، یہ باتیں بلانے والی اور گھر بسانے والی باتیں نہیں ہیں۔ اگر گھر بسانے والی باتیں ہیں استقار میاں، تو حق ایمان سے اور اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے، اور ان کو خیال انداز سے یہ سوچ کے کہ میرے بھی اولاد ہیں، میرے بھی بچے ہیں، یہ سوچ کر کے آپ اپنے بچوں کی قسم کھائیں۔ اور میری تو زندگی کا مسئلہ ہے، میں تو یہ الفاظ بولوں گا ضرور کہ آپ حق ایمان میں رہ کر کے یہ بتائیں اور انسانیت کے راستے پہ آگے یہ بتائیں کہ یہ تم جو الفاظ بول رہے ہو یہ بہتر ہیں، یہ تم نے جو لکھ کے بھیجا ہے اتنا بڑا پرچہ، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے جو تم لکھ کے بھیجے؟ یہ گھر بسانے والی باتیں نہیں ہیں استقار میاں۔ بھلے سے تم مجھ سے بڑے ہو اور بھلے سے تمہارے 4-5 بچے ہیں، مجھے اس بات سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اس سے بھی کوئی دقت نہیں ہے، میرے تو خیر 2 ہی تھے، 2 ہی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے ہر ایک سوال کا جواب ملے گا، ایسی کوئی بات نہ ہے۔ لیکن یہ جو تم دماغ لگا رہے ہو نا، یہ دماغ لگا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو تمہیں کرنا ہے کرو بنداس، پہلے تم اپنے گھر میں فیصلہ کرو، تمہارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب باپ بنتے، چھوٹی بہن سے لے کے بڑی بہن تک سب باپ بنتی ہیں، تو پہلے گھر میں اپنا فیصلہ کر لو، تمہاری گھر میں عزت ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری تو خود عزت نہیں ہے، تمہاری بات کہیں مانی جاتی، تمہاری بات چلتی، تو استقار میں آج یہ لپڑے یہاں سے یہاں تک نہیں پہنچتے۔
तुम्हारे छोटे छोटे है ना तुमसे बड़े बनते हैं। इस चीज़ का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में भेज चुका हूँ, रिकॉर्डिंग भेज चुका हूँ मैं। जो बातें बड़ों को करनी चाहिए वो छोटे छोटे करते हैं, और जो तुम्हारे यहाँ ख़ानदान के अंदर मर्दों को करनी चाहिए तो वो लेडीज़ों को करनी पड़ती हैं बातें। मुझसे जो बातें करी हैं ना, तो तुम्हारे यहाँ पे किसी मर्द ने बात नहीं करी है। तुम्हारे मोहल्ले में कोई मर्द नहीं था, तुम्हारे ख़ानदान में कोई मर्द नहीं था बात करने वाला, लेडीज़ों की पंचायतें लगती थी। अब मुझे क्या तुमने क्या फालतू समझ रखा है? क्या मैं बीरू अम्बानी का भतीजा समझ रखा है, या बीरू अम्बानी का दामाद समझ रखा है मुझे तुमने? कि जब दिल करे जब आ जाओ, जब दिल करे जब चले जाओ, जब दिल करे जब आ जाओ, जब दिल करे चले जाओ। मैं उतना कमाता हूँ जितनी मेरी खुराक है, उससे ज़्यादा कमाना मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जिसके लिए कमाना था वही बेहतर नहीं, तो मैं कमाऊँ किसके लिए और किसके लिए जोड़ के रखूँ? तुम्हारी बहन से लास्ट टाइम गया था मैंने कि अभी भी समझ जाओ फ़ायदे में रहोगे। और तुम्हारी बहन की जो हरकतें हैं ना, जो तुम्हारी बहन ने कहा था कि दूसरे से मिल बैठी हूँ, 1 महीना हो गया मुझे प्रेग्नेंट हो गए, तो इफ्तिखार मियाँ इस चीज़ का जवाब अपनी बहन से पूछो। ये सवालात तुम्हारी अम्मी ने सवालात करे थे कि जाके इसको इतना टाइम हो गया, इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये सवाल तुम्हारी माँ से करे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, भरी महफिल में, भरी पब्लिक में करे जाएंगे। और भी बातें कैसी हैं, इन्हीं ताल्लुक़ से काफ़ी बातें हैं जो मुझे बात करनी है, छोड़ना नहीं है। अरे जब तुम्हारी बहन को मुझसे मतलब नहीं है, तुम्हें मुझसे मतलब नहीं, तो क्यों ज़बरदस्ती छेड़ा-छाड़ी कर रहा है? कर करा के ख़त्म करो। तुम्हें हम जो करना है करो, जो मुझे करना होगा मैं अपने आप करता फिरूँगा, जो करना होगा करो, जो करना है बिंदास तरीके से। हद हो गई है यार तुम्हारी, हद हो गई है। कब तक परेशान होऊंगा मैं, कब तक दिक्कत उठाऊंगा तुम्हारी मैं? अरे इससे अच्छा है हाल है कहने में ज़िंदगी में इतनी दिक्कत परेशानी उठाने से अच्छा तो यही है कहना है, फालतूगिरी में टाइम काटने से अच्छा यही है कहना है कि आदमी कुछ और लंबी चौड़ी सोच ले, कुछ अब अच्छा सोच ले। कब तक करेंगे तुम ये हरकतें? करो। जब तुम 4 साल से खिलाते आ रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे घर में खिलाने की पिलाने की कोई कमी नहीं है, तो रखो ना 4 साल और रोक के रखो। बहुत बड़े बहादुर बनने थे, बहुत बड़े 30 मार खां बनने थे ना रोक के तुमने। मेरी औलादें भी तुमने अपने घर पैदा करवाई। हाँ, अबे मेरे घर में जगह नहीं थी या मेरे अंदर ताकत नहीं थी करने की। तुमने कभी कमजोरियाँ देखी, दिक्कत देखी, परेशानी देखी? किसको क्या परेशानी हो रही, क्या दिक्कत हो रही है, किसकी गलती क्या है क्या नहीं है? मेरी किसी ने सुनी है क्या? हमेशा तुम्हारी तरफ से चपड़ चली है हमेशा। तो इफ्तिखार मियाँ जितना परेशान करना है तुमने कर लिया, और मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रख लिया, ऐसी कोई बात नहीं वाली बात ना है। अब तो दिल में बस यही उमंग है जो तुमने सवाल किया है ना, आते हो तो आओ, जाते हो तो जा, आते हो तो आओ, ना तो कोई बात ही नहीं है, समझ गए? यही सवाल था ना तुम्हारा, आओ तो आ जाओ, है ना? तो मेरा भी सवाल यही है, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम। तुम्हारा भी सवाल यही, मेरा भी सवाल यही, दोनों पे जिद पे लड़े रहो। करो जितनी जिद करनी तुम्हें, कितने तुम्हें मुकदमे करने, कितनी तुम्हें परेशानी दिखानी, कितने तुम्हें मगजमारी करनी है, सोच लूँगा मैं भी ज़िंदगी में कमा के इस लपड़े में डालता रहूँगा। और क्या करो, तुम सारे भाई मिल के करो, मैं अकेला करता हूँ। देखो मैं बताता हूँ फिर तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इफ्तिखार मियाँ बच्चों वाले हो तुम, ख्याल करो, समझे? कल को ऐसा ना हो कि मेरी तरह तुम्हें भी फिरना पड़े, तुम्हें भी घूमना पड़े ऐसी। उस अल्लाह से डरो। ये सारी दुनिया की आफतें चल रही हैं, बच्चे तुम्हें खुद अपने दिमाग से सोचो भाई, तुम्हें खुद को इस वक्त कमाने में परेशानी हो रही है, तुम खुद अपने बच्चे पालने के लिए परेशानी में, दिक्कत में कहना वक्त काटते फिर रहो। हाँ, तो तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कितनी तकलीफ़ होगी, मुझे कितनी परेशानी होगी। अबे मेरी औलाद मेरे साथ में होना, मेरी औलाद मेरे साथ में होना, तुम काय को 30 मार खां बनने हो? शादी इसके लिए करे थे क्या कि बच्चों को ब्लैकमेल करके पैसों के इसमें डालेंगे? हाँ, भाइयाँ धमकी दे रहे हैं तुम्हारे, बहनें धमकी दे रही हैं, माँ धमकी दे रही है। दे लो धमकी जितनी देना, जो करना है करो, बिंदास तरीके से कर लो। और हाँ, इफ्तिखार मियाँ ठंडे दिमाग से, प्यार मोहब्बत से सोच लो, अभी भी सोच लो। ये रमज़ान का टाइम है, तुम भी रमज़ान का टाइम दे रहे हैं ना कि 12 तारीख में आ रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मुझे आने की ज़रूरत नहीं है इफ्तिखार, समझे? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, मालूम है ना इस चीज़ का? घर में ना खाने को, अम्मा चली भुनाने को, चाचा गए थे तिरपाल सिलाने को।
हाँ, अबे क्या समझ रहे तुम मुझे? क्या सोच के समझ रहे? क्या सोच के तुम मुझे टॉर्चर कर रहे है? किस बात से क्या नाम है सोच के तुम टॉर्चर करे जा रहे हैं मुझे? घड़ी घड़ी परेशान करे जा रहे तुम मुझे। क्या है तुम्हारे दिमाग के अंदर? क्या दिल में चल रहा है तुम्हारे? क्या मगजमारी लेके घूम रहे हो तुम? हाँ, मैं क्या बीरू अम्बानी की औलादों में से हूँ? ये ज़्यादा बड़ा बादशाह समझ रखा है मुझे। अबे बेवकूफ़, कमाऊँगा तो बच्चों को खिलाऊँगा, और ऐसे दिक्कत में रखोगे, ऐसी परेशानी में रखोगे तो कुछ कमाने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। मुझे सिर्फ अपने पेट का वास्ता, मुझे अपने पेट का ख्याल करना है। 3 रोटी की खुराक है, उसमें 4 रोटी कमाता हूँ तो किसके लिए कमा रहा था? तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारे भांजी भांजों के लिए। और वो कमाने के लिए तुमने मुझे ऐसा परेशान कर दिया, ऐसी दिक्कत में डाल दिया कि साला वो कमाने के वांदे होगा मेरे। हाँ, इस्तगार इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो एक बात याद ध्यान रख लेना कि अल्लाह की फिटकार जिस दिन पड़ी ना, तो अल्लाह मेरी तौबा तौबा। घर में जितने भी भाई हो ना तुम, आज नहीं कल, कल नहीं परसों इंशाअल्लाह ताला, तो दौर चलता आ रहा, वक्त चलता आ रहा है। सारे के सारा भाई अलग अलग ना रहे तो मेरा नाम भी अज़हर नहीं। जितनी कोशिश है जोड़ लेना, जितनी कोशिश है लगा लेना, करो जितना करना है। तुम्हें परेशान कितना करना है। और तुम्हारा भाई जो कह रहा है ना आराम पार करने के लिए जवानी दिखा रहा है, पहलवानी दिखा रहा है, जवानी बदमाश दन के दिखा रहा है कि या तो मार दो या मर जाओ, है ना। तो उसको पहलवान को समझा के रखो कि अभी वक्त बाकी है, और ख़ुदा से ज़रा तौबा करो। खुदा न खास्ते ये बीमारी चल रही है, अगर बीमारी में शामिल कोई भी हो गया ना तो सारी पहलवानी समझ जाओ टपकती भी नज़र आवेगी। फिर बहुत लंबे लंबे बोल वचन दे रहे, बहुत बड़े बड़े बोल वचन दे रहे तुम लोग। अब किसी की सुनने वाले नहीं है। तुमने जो सवाल करा था बहुत अच्छा करा था, माशाल्लाह, बड़े अच्छा सवाल करा तुमने। उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद बोलता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो मैंने आप सबकी सुना, मैंने बेशक सुना, सबकी सुनता था 1.5 साल से पहले, सबकी सुनता था मैं। जिस वक्त घर से निकल गया सबकी सुनना बंद कर दिया मैंने, अब सिर्फ अपना सुनना है। अगर आवेगी खुद से तो ठीक है, और ना आवेगी ना तो जो तुम्हारा दिल करे वो कर लियो, समझ गए। मैं कोई चूतिया नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, समझ गए कि साला तुम्हारे घर पे आके नाक लगड़ता रहूँगा मैं, समझे। लड़की से शादी करी थी, कोई होर पर ये शादी नहीं करी थी मैंने।